इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी में हमारे एक क्लाइंट है, इनको काफ़ी परेशानी थी। उसको इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी के पंकज उन्होंने सॉल्व किया और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या थी पहले, और जो इनका हम लोग ने जो इनको हेल्प किया उसके बाद अब इनका कैसा सिचुएशन है ये आप आपको बताएंगे। पहले आपका क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? निखिल जी, एक्चुअली अक्टूबर 2013 से मेरे साथ सीक्वेंस में बैड इंसिडेंसेस होने शुरू हो गए। सबसे पहले मेरी बेटी जो बोर्डिंग में करती थी, उसके पैर में अचानक से लग गया और उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करवाना पड़ा। तब मुझे लगा कि ठीक है, बच्ची है, खेलते वक्त की गई होगी। उसके इमीडिएटली बाद में जब मैंने मेरा पूरा घर रिनोवेट करना, तो दूसरे ही दिन रिनोवेशन कंप्लीशन के बाद में पेंटिंग फर्नीचर सब होने के बाद अचानक से पूरे घर की टाइल्स निकल गई। तब भी मुझे ऐसे लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पर जब मैंने सोचा कि नहीं, चलिए इतना रेनोवेशन करवाया, टाइल्स बच गई तो वो भी कर देते। जैसे ही मैंने टाइल्स बदली सारी, करीबन 10 से 12 दिन के अंदर में अचानक से मेरे घर में आग लग गई। आग लगने का कोई कारण लोग नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें पता चला कि ये जो इन्वर्टर बहुत टाइम से रखा हुआ है, जो कनेक्टेड भी नहीं था, वो ब्लास्ट होकर आग लगी। तो लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऐसे भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तब जाके मैंने सोचा कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे बैड सीक्वेंसेस एक के बाद एक। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे शायद मदद की ज़रूरत है। पर जब तक मैं आपको कांटेक्ट कर पाती, उसके पहले मेरा अचानक से मैं ऑफिस में गई और वहाँ पे मेरा पैर तो बहुत शूटिंग पेन चालू हुआ और मेरी बॉडी की मूवमेंट स्टॉप हो गई। और फिर हमने जब ये MRI वगैरह करवाया, उसमें पता चला कि जो मेरी वेन्स है, जो ब्रेन को कनेक्ट होती है, जो सेंसेशन जिससे हम पता चलता है कि बॉडी के सेंसेशंस क्या है, वो पूरी जो वेन थी वो इंटैंगल्ड हो गई थी मेरे स्पाइन में, नंबर्स में L2, L3 और L4, ये सारे नंबर्स में तो ऐसे लिपट गई थी। लिपटने के बाद में उसमें से ब्लीडिंग हो रहा था, जो बहुत अनयूजुअल था। स्लिप डिस्क होती है, वो नॉर्मल होती है कि भाई डिस्क हट गई तो इसको निकाल दो। जो वेन थी वो पूरी टैंगल्ड थी। आई वाज पैनिक्ड। I thought that now my life is over. But in that critical situation also you came and you assured me that no, this is not the end. We are here to support and help you. Just relax. Because I remember your first visit. When you came here, I was in bed. I was not able to walk also. Yeah, I remember. Yeah, but that after was a that, great yes, change now. Yeah, after that I had a very speedy recovery. I could join back my work, and everything is falling into place. And I think in 1 or 2 weeks you were in office, right? yes, even now my leg had no sensation, right leg, where Mr. Shukla, who visited my house, assured me and gave me some remedies, and he said, no, let the doctor say 6 months, but I will assure you that within 3 months you will be on your feet. And he took extra efforts to check upon my health, to check upon my situations and guide me now and then, again and again, without any hesitations, without any time constraint. He was there. Your society, I mean, is very much helpful, and I still cannot believe that in a era where everything is chargeable, your services are so adequate and so much reliable. You can rely upon your help and on your team, especially your team. The team is excellent, and they work in a non-profitable manner. They never charged anything to me. They have never expected any monetary gains from me or any gifts as such. They have denied to accept it. Their motive was only to assure me that these things can be handled. I do not believe in black magic.
because I have not never seen the ghost. But these incidences which happened with me, I had an intuition that there is some bad elements or a bad spirit who is playing a major role in these incidences, because it was beyond my imaginations. And I had not even had a breathing space. I could not recover from one incident and the next was ready for me. Correct. And even ordinary people started telling me that it's very bad, what is happening with you? They started questioning me. And now, how is the situation? Yeah, now I feel it is I mean, I have passed through that bad phase or a bad element or a negative energy, whatever you can call, only because of your support, and not only your presence, but you extended the moral support and the right guidance at the right time. Your team was always available for any kind of to remove any kind of negativity in our minds. And we thought that black magic and spirit is something very bad. We have to only contact those traditional tantrics. How about So charges? No, when I had called you up, I had also called up Just Dial. I got your number through Just Dial, and they had given me 3 numbers, and I had called all 3 numbers. But I was so panicked when I met them, because they were charging in thousands of rupees, and there was no assurance. It was only monetary things. They were not interested in knowing what exactly the problems are. They were only interested in selling their sittings. That this will be the charges per sitting. Correct. So there was no spirit in my body that I had to take a sittings. Or So that is a different phase. If you go for what you call this type of sittings, okay. so they actually motivate you in a different way. But whatever the problems you actually are facing, it is was not. in this house actually, Yeah. probably. Or maybe it was a black magic done on me and my family. I would rather say my family, because all of us suffered. All of us suffered. My children suffered through their health and education and the studies. Especially my daughter, who was in 10th standard, and that time her prelims were expected. My son, who just came home for 8 days vacation, and then he also had a major sickness. And the next was my health was at stake. So there was lot many things which put me to a thought that yes, there is something, a bad spirit or a black magic or a negative energy, whatever you call it. But it was not normal, according to me. What about that financial crunch you have faced earlier and now to the political situation? Basically, financial crunch is not vanished as such. Because of my ill health. I was bedridden for certain time, so definitely the crunch was there. But now I am back to my work with a full enthusiasm and full energy. But people don't believe me that I've undergone a surgery just a month and a half back. That is a great thing. I mean, So I'll always remain grateful to you and your team, and of course the way you're working is highly appreciable. And I wish that more and more people be in touch with you for their small or big problems, and you be a guide to them and help them in coming you out say of this something to crisis. our viewers and our clients. Basically, I just have a single message that we normally, the educated people, do not believe in the black magic or the spirit as such, but it does exist. I don't know how to define it, but let me not talk about the problems. Let me talk about the solution, and that is this Indian Spiritual Society, and definitely we must seek their help and be in touch with them. नमस्कार, निखिल बात इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूँ। इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी जो पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअलिटी पर काम करती है, हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड होते हैं। ब्लैक मैजिक, घोस्ट। अमिता जी वेल एजुकेटेड है और काफ़ी हाई पोस्ट पर उन्होंने काम किया है, और जब इनके आसपास में ऐसी चीज़ें होने लगी जो बयान करना बड़ा मुश्किल है, तो पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी बहक जाता है, समझ में नहीं आता इसे क्या किया जाए।
हाई पोस्ट पे रहने वाला इंसान लोगों को गाइड करता है, बट ऐसे सिचुएशंस में खुद को समझ में नहीं आता है कि वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत टफ सिचुएशन होता है जब इंसान कुछ ऐसे दौर से निकलता है जहाँ पर वो ऐसी चीज़ों को विश्वास करना शुरू कर देता है। हमारे आसपास में कई सारी चीज़ें हैं जिसका हमें साइंटिफिक एविडेंस न होते हुए हम उसको प्रूव नहीं कर पाते। साइंस आज चाहे कितना ही आगे निकल गया हो और उन्होंने कितना ही रिसर्च किया हो, पर अभी भी उसका रिसर्च खत्म नहीं हुआ है। हर रोज एक नई जंतु, नया कीटाणु या कुछ ना कुछ नया खोजे जा रहा है, पर उसका अंत नहीं है। प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें इसमें डाल रखी है जिसका कोई जवाब साइंस के पास भी नहीं है, और साइंस का काम है उस पर रिसर्च करना। इंडियन स्पिरिचुअल सोसाइटी स्पिरिचुअलिटी को साइंस मानते हुए इस पर रिसर्च करता है। किसी की कही हुई बातों को हम विश्वास नहीं करते, उस पर हम रिसर्च करके उनका सॉल्यूशन देते हैं। अमिता सावंत जी, इनके ऊपर हम लोग ने अपना टीम लगाया, जिस टीम ने अपना सक्सेसफुली उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ब्लैक मैजिक, गोस्ट, ये सब क्या वाकई में होता है? कई सारे एविडेंस और कई सारे थियरीज में वो एग्जिस्ट हैं, और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास में कई सारे ऐसे वाइब्स होते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते। आपको सीधा एग्जांपल बताता हूँ। मोबाइल में आप कहीं दूर से भी बात कर लेते हैं, बट उसकी एनर्जी, उसके फ्रीक्वेंसीज को हम देख नहीं पाते, बट वो एनर्जी है, एग्जिस्ट है, हमारे आसपास घूमती है। हम फ़ोन पे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, पर हम उसको देख नहीं सकते। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि हम उसको डिनाई कर देंगे कि मोबाइल चीज़ ही नहीं है। ऐसे कई सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे आसपास में है, जिसको आजकल के मॉडर्न डिटेक्टर्स जैसे केटोमीटर या कई सारे ऐसे थियरी बेस्ड डिटेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, जिसके माध्यम से लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ थियरीज है, जैसे गोस्ट जब मूव करता है, वो जो भूत कहते हैं, गोस्ट कहते हैं, जब मूव करता है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और केटोमीटर जैसे डिवाइसेस है, इसको हम गोस्ट मीटर प्रो, इस तरह के कई एडवांस डिवाइसेस आज मार्केट में अवेलेबल है। एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, रिसर्चर, जब तक आप इसका प्रॉपर नॉलेज ना हो तो आप इस पर वर्क मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी अगर प्रॉपर रीडिंग नहीं है तो आप गोस्ट ना होते हुए भी उसको मानना शुरू कर दोगे। इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्वेंसीज मोबाइल्स में भी होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर और कई सारी चीज़ों में होता है, और इस तरह के डिवाइस मिसगाइड भी हो सकता है। पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उस पर रिसर्च करके प्रॉपर थियरी बनाता है। जहाँ तक ब्लैक मैजिक का बात है, उसका एग्जिस्टेंस वही लोग महसूस करते हैं जो उसके थ्रू निकल जाते हैं, और जो लोग नहीं निकलते हैं उसको एक बकवास कहते हैं या एक घोंसला कहते हैं। जहाँ तक हमारा मानना है, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हमारे पास काफ़ी एविडेंस मिले हैं, और ज़्यादातर ये जो सिस्टम्स होती है बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करती है, और इस पर कई सारे और लोगों ने थियरीज रखी है जो समय आने पर मैं आगे आपको अगले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप हमसे ज़रूर पूछिए। हमें खुशी होगी आपके सवाल और जवाब को ठीक से जवाब देना, और आपकी कोई परेशानी या कुछ भी पैरानॉर्मल से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, आप हमें ज़रूर संपर्क करें।